Hello students, this is Mrs. Veena Deshmukh, your assistant teacher. In this video, we will see the fifth lesson from history, medieval architecture. There are some difficult words having their meanings. We have to understand the meaning of these words here. You have to open your page number 53 for this lesson here. Arch means a curve or a semicircle. Architecture means art and study of designing buildings. बावली मीन्स स्टेप वेल मीन्स कुएं को बोलेंगे बावली. Colonnades means rows of stone columns with equal spaces between them. And then havelis, magnificent mention that usually have colorful painting on the walls. हवेलीज का नाम आपने सुना होगा कि जो बड़े बड़े बंगलोज रहते थे इन अर्लियर पीरियड, in medieval period, that was called the havelis. And minarets means slender and tapering pillars that looked like towers. Motif means design or pattern. Mosaics means a picture or patterns made by placing. Muezzin means placing together small pieces of glass or stone of different colors. Muezzins means man who calls Muslims for a prayer from the minarets of mosque. Mural means wall painting. Pitra dura means style of the decorating structure with the floral designs and use of precious and semi-precious stones. Shikhara means spire-like structures over the main or central shrines or of a temple. Now come to lesson. Red Fort is a pride of India. Every year the Prime Minister of India hoists the national flag at the Red Fort. You will be happy to know that it is a medieval period monument that still hold its grandeur. And यू नो स्टूडेंट्स कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर साल कहाँ से फ्लैग होइस्ट करते हैं, फ्रॉम रेड फोर्ट. एंड कब बना हुआ है ये रेड फोर्ट? ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड. अगर आपको ये पता चला कि ये मॉन्यूमेंट मिडिवल पीरियड में बिल्ड हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो आप हैप्पी होंगे. एंड उसका जो भी ग्रेटनेस है वो अब तक हमें दिखाई देता है. Actually, the medieval period is known for architecture, painting, language and literature. और हम यहाँ पे medieval period के बारे में पढ़ रहे हैं. medieval period में जो भी हुआ, कौन से रूलर्स थे, क्या किया, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. तो medieval period किसके लिए स्पेशली जाना जाता है? आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लैंग्वेज एंड लिटरेचर. Numerous structures were constructed in different architectural styles. और हमने बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे, वो अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल में बिल्ड किए हुए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं. Monuments construction showcased many aspects of an emperor और द एम्पायर एज अ होल. और जो भी मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शन है, अगर वो हम देखते हैं तो हमें वो एम्पियर के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स पता चलेंगे और एम्पायर के बारे में भी पूरा पता चलता है. It was an expression of art, aesthetics and the political power. Aesthetics means the study of art or beauty. And construction of forts, capital cities, gateways, mosques, temples or tombs all brought name and fame as they were considered as a testimonies to the power and wealth of the emperor. And you know students, why these rulers were constructed these monuments, these buildings, because they wanted to show their greatness, their power to people, to their opponents. उनको अपना पावर, अपना ग्रेटनेस लोगों को दिखाना था, इसलिए उन्होंने अलग अलग वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बिल्ड किए, अलग अलग बिल्डिंग्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की. एंड वहाँ पे ये कंसिडर किया जाता था कि दिस कंस्ट्रक्शन, दिस बिल्डिंग्स, दिस मॉन्यूमेंट्स वर considered as testimonies to the power and wealth and of the emperor. यानी एम्पियर के पावर एंड वेल्थ ये कंस्ट्रक्शन से शो होता था. टेस्टिमनीज मीन्स विटनेस, एविडेंस बोलेंगे उसे. ओके, अंडरस्टूड. नाउ
The structure or monuments were of two kinds, and these structure or monuments were in two kinds. The first were fort, palaces and gateways which were constructed for safety and protection. और पहला काइंड कौन सा है कि फोर्ट्स, पैलेस एंड गेटवेज क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते थे वहाँ पे? फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए और सेफ्टी के लिए. एंड सेकेंड वर द स्ट्रक्चर मेन फॉर public activities such as temples, mosques, gardens, tanks, wells, caravans, saris and bazaars. और सेकेंड कौन सा स्ट्रक्चर था? फॉर द किसके लिए बनाया जाता था सेकेंड स्ट्रक्चर? फॉर पब्लिक एक्टिविटी, लोगों के लिए. विच वर दिस स्ट्रक्चर? टेम्पल्स, मॉस्क, गार्डन्स, टैंक्स, जो पब्लिक प्लेसेस रहते हैं वो सब कंस्ट्रक्ट वहाँ पे किया जाता था. नाउ आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड द स्टाइल ऑफ मॉन्यूमेंट्स. Monuments of a particular period in history are recognized by the style, design and material used, like marble or red sandstone. एंड जो भी पर्टिकुलर पीरियड में हिस्ट्री में मॉन्यूमेंट्स हमें दिखते हैं, हिस्ट्री के जो भी पर्टिकुलर पीरियड के मॉन्यूमेंट्स हमें दिखते हैं तो उसमें उससे ये रिकॉग्नाइज उसकी स्टाइल, डिज़ाइन एंड मटेरियल्स कौन सा यूज़ किया हुआ है, लाइक मार्बल और रेड स्टोन्स, ये हमें पता चलता है मॉन्यूमेंट से ही. For example, during the period between the 7th and the 10th century, the building construction style underwent a change as more room, doors and windows were added to buildings. मीन्स 7th एंड 10th सेंचुरी में कौन सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टाइल यूज़ हुई थी वहाँ पे? देयर वर सम चेंजेस. मीन्स वहाँ पे बहुत सारी रूम्स ऐड की थी, डोर्स एंड विंडोज़ वहाँ पे ऐड हुए थे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में. And a horizontal beams was placed across the two vertical columns between the 8th and the 13th century. और 8 और 13th century में क्या यूज़ किया था कंस्ट्रक्शन में? horizontal beams and two vertical columns. ये कहाँ पे यूज़ किए था? कौन से सेंचुरी में यूज़ किए थे ये टेक्निक? in 8th and 13th century. This style was known as a Tribet or Corbelled style of architecture. और ये स्टाइल को क्या कहा जाता था? Tribet and the Corbelled or Corbelled style of architecture. It was used in the construction of temples, mosques, tombs and in building अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्स. और कहाँ पे यूज़ की जाती थी ये स्टाइल? मीन्स जो हॉरिजॉन्टल बीम्स थे एंड कुछ पिलर्स थे वो क्रॉस किए जाते थे एक दूसरे को. दैट वाज कौन सी स्टाइल थी वो? ट्रिबेट एंड द कॉर्बेल्ड स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर. और कहाँ पे यूज़ की जाती थी ये स्टाइल, कंस्ट्रक्शन स्टाइल? स्पेशली इन टेम्पल्स, मॉस्क एंड टॉम्ब्स. एंड दिस स्टेप वेल आर कॉल्ड एज अ बाउलीज. और वहाँ पे उसके जो भी टेम्पल्स रहता था, मॉस्क रहता था या टॉम्ब्स रहते थे, टॉम्ब्स मीन्स समाधि बोलेंगे इन हिंदी. तो ये बिल्डिंग बनाने के बाद उसको क्या अटैच किया जाता था? स्टेप वेल्स. मीन्स वहाँ पे कुछ स्टेप्स वेल्स बनाई जाती थी, उसको बावली कहा करते थे. देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर टेम्पल आर्किटेक्चर बिटवीन 800 to 1200 CE. During this period, a number of temples were constructed all over India. Temples housed images of deities and served twofold purpose. And during the medieval period, there were different temples, many temples constructed by the ruler all over the world. And temple जो टेम्पल रहता था वहाँ पे डाइटीज़ की इमेज रखी जाती थी और वहाँ पे दो प्लेसेस रहते थे
वन दे बिकेम प्लेसेस ऑफ वर्कशिप, एक प्लेस वर्कशिप के लिए रहती थी। तो सेकेंड दे प्रोवाइडेड पैट्रोनेज टू डांस म्यूजिक एंड ऑल्सो बिकेम सीट्स ऑफ लर्निंग, और सेकेंड प्लेस किसके लिए थी, डांसिंग म्यूजिक एंड लर्निंग। एंड दिस स्ट्रक्चर डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ अ किंग, और ये स्ट्रक्चर से क्या शो होता था, रूलर का पावर प्रेस्टीज। And Dilwara temple at Mount Abu in Rajasthan was done up in pearl white marble and is example of Jain temples built in this period। और जो राजस्थान में माउंट आबू में जो दिलवारा टेम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। कैसे बनाया हुआ है ये टेम्पल, वाइट मार्बल से। एंड दिस इज़ अ वन एग्जाम्पल ऑफ जैन टेम्पल्स। एंड देयर इज़ अनदर ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल्स एट रनकपुर, और रनकपुर में एक जैन टेम्पल्स का ग्रुप है। एंड दीज आर क्लोज टू दिलवारा एंड वेरी फेमस, एंड दीज टेम्पल्स क्लोज टू द दिलवारा, दिलवारा से क्लोज होने की वजह से ये टेम्पल्स बहुत ही फेमस है। दे हैव मार्बल हॉल्स, पिलर्स, इंट्रिकेटली कार्व्ड सीलिंग्स, पिलर्स एंड रूट्स, और ये पूरे जो भी टेम्पल्स हैं वहाँ पे पिलर्स बनाए बहुत ही ब्यूटीफुली ये टेम्पल्स बनाए हुए हैं। कार्विंग सीलिंग है, हॉल्स है, बड़े बड़े हॉल्स है। एंड because of these all things, these temples are very beautiful। 100 temples at Anilwara in Gujarat is another great example of architecture। और 100 गुजरात का जो अनिलवारा का 100 temples है, दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। वहाँ का भी आर्किटेक्चर बहुत ही गुड है। अनिलवारा वॉज द कैपिटल ऑफ सोलंकी रूलर, एंड अनिलवारा किसकी कैपिटल थी, सोलंकी रूलर्स की। द चंदेलास बिल्ट द फेमस खजुराहो टेम्पल्स, और चंदेला ने कौन सा टेम्पल बिल्ड किया, खजुराहो टेम्पल। चंदेला वॉज वन डिनेस्टी एंड दे आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर स्कल्पचर, और ये टेम्पल्स उनके स्कल्पचर के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एंड देयर इज पिक्चर ऑफ दिलवारा टेम्पल, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। एंड केस स्टडी द राजा राजेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजावुर, given here the information about the राजा राजेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजावुर की कैसे बिल्ड किया था, कैसे बनाया हुआ है। दिस टेम्पल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, और कितना टॉल शिखर है ये टेम्पल का, और जहाँ शिखरा में 90 टन्स स्टोन लगा हुआ है। और वो जो पीरियड था वहाँ पे जो इतना वेट ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट की भी अरेंजमेंट नहीं थी, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क वहाँ पे किया गया है राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाते वक्त, बिल्ड करते वक्त। For the 12th century onward, there were some inventions in material mixing and stylistic architectural development that resulted in strong structure. Some are given below. And arches were introduced. They were beautiful in shape and strong enough to carry the weight of the superstructures above the doors and the windows। एंड आर्चेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल शेप के थे और स्ट्रॉन्ग थे। सेकेंड, यूनिक टाइप ऑफ सीमेंट मेड विद लाइमस्टोन वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, और अलग तरीके का एक सीमेंट वहाँ पे यूज़ किया था लाइमस्टोन से बना हुआ। एंड इट वाज वेरी एक्सेलेंट क्वालिटी। टू फर्दर हार्डन इट, स्टोन चिप्स वर मिक्स्ड टू मेक इट लाइक अ कॉन्क्रीट, और ये हार्ड बनने के लिए वहाँ पे कुछ स्टोन चिप्स यूज़ की थी, मिक्स की थी like concrete। Due to this, construction of the large structures became easier and faster। Then architecture during Sultanate period, new styles and techniques were introduced by the Turks and the Afghans who came into India and later settled here। और कुछ न्यू स्टाइल्स एंड
टेक्निक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी किसने, तुर्क्स और अफगान्स ने। वो पहले इंडिया में आए, उसके बाद वो यहीं पे सेटल हो गए। द ऑलरेडी existing style of Indian architecture had these distinct features. These features are the concept of courtyards and colonnades are very common to Hindu structures. And courtyards means in Marathi angan, and colonnades means series or row of column, स्पेशली टेम्पल्स। और कहाँ पे यूज़ किया जाता था ये स्ट्रक्चर, टेम्पल्स में। एंड दिस वॉज बोरोड टू enrich Muslim architectural designs. And a colonnades was another unique feature which includes a row of stones columns with equal spaces between them. And second, colonies supported by brackets were included. And third, the decoration and beautification of structures with the help of carving. These features were merged artificially with new styles brought by the Turks and the Afghans. और कैसे ये न्यू स्टाइल यहाँ पे न्यू फीचर्स यहाँ पे मर्ज हुआ, मर्ज यानी अपीयर्ड होना, प्रकट होना, because of this Turk and Afghans. This fusion gave birth to the Indo-Islamic style of architecture. और इसे ही, ये स्टाइल को ही क्या कहा जाता था, इंडो इस्लामिक स्टाइल. दिस स्टाइल वॉज यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग पैलेसेस, मॉस्क एंड टॉवर एंड फोर्ट्स. और ये स्टाइल कहाँ पे यूज़ की जाती थी, पैलेसेस कंस्ट्रक्ट करते समय, मॉस्क एंड टॉवर्स एंड फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करते समय. Constructions were carried out by different dynasties of the medieval period, and the rulers of the Delhi Sultanate built tombs, palaces, fort, mosque, baulis and gardens. And what is the meaning of the tombs? Tombs means samadhi. And ये जो मिडिवल पीरियड की अलग अलग डिनेस्टी थी, वहाँ पे अलग अलग डिनेस्टी में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स मीन्स बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती थी. एंड द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत उन्होंने बहुत कुछ बिल्ट किया था, लाइक टॉम्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, मॉस्क, बाउलीज मीन्स कुआ एंड गार्डन्स. They used a grey stone which made the structures plain and dull. And in sharp contrast, the Mughal structures looked royal and beautiful due to the use of marble and red sandstone. And ये जो डिनेस्टी थी वो कौन सा स्टोन यूज़ करती थी, ग्रे स्टोन. उसे जो भी कंस्ट्रक्शन था, स्ट्रक्चर था, वो प्लेन एंड डल था. इन शार्प कॉन्ट्रास्ट द मुग़ल स्ट्रक्चर्स लुक रॉयल. और ये जो मुग़लों का स्ट्रक्चर्स था वो कैसे था, कैसे दिखता था, रॉयल, ब्यूटीफुल ड्यू टू द यूज़ ऑफ मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन. And the important feature of Turkish and the Afghan architecture was the use of the arch, the dome and the minarets. And बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा था तुर्किश एंड अफगान आर्किटेक्चर का, कि आर्च तो हमने देखा है, सेमी सर्कुलर शेप. एंड डोम मीन्स जो गुब्बारे जैसा रहता है. फॉर एग्जांपल इन मॉस्क में हमें ऊपर दिखता है, कभी कभी टेम्पल्स में हमें वो दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड द डोम. एंड मोनरेट्स. Turkish Sultan employed many Indians who introduced many patterns and designs such as a bell, a lotus and a swastika. And ये जो तुर्किश सुल्तान्स थे, उनके यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस एम्प्लॉयड थे. एंड हु इंट्रोड्यूस्ड मेनी पैटर्न्स. उन्होंने अलग अलग पैटर्न्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए. कौन सी डिज़ाइंस इंट्रोड्यूस हुई वहाँ पे, बेल, लोटस एंड स्वस्तिका. टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, फ्लावर्स एंड अरेबिक कैलीग्राफी वर यूज्ड. एंड कुछ डेकोरेशन करने के लिए 1 मिनट.
बिल्डिंग डेकोरेशन करने के लिए वहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस यूज़ की जाती थी. फ्लावर्स एंड द अरेबिक कैलीग्राफी यूज़ की जाती थी. दिस अरेबिक कैलीग्राफी हैड वर्सेस from the Holy Quran, and the city of Siri was built by अलाउद्दीन खलजी. और ये जो सिटी थी सीरी की, वो किसने बिल्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने. मोहम्मद बिन तुगलक बिल्ट जहाँपनाह इन दिल्ली. और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने क्या बिल्ट किया था? जहाँपनाह इन दिल्ली. दिस शोकेस रिमार्केबल प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. और ये जो जहाँपनाह यहाँ पे बिल्ट किया है दिल्ली में, उसे बहुत ही कैसे प्लानिंग था और कैसे आर्किटेक्चर था, वो वहाँ से शो होता है. इंडियंस, 1 minute. Indians, especially the Rajputs and other Hindu rulers, were so impressed and influenced with the buildings of the sultans that they adopted the arch and many other features. और ये जो बिल्डिंग्स थी सुल्तानों की, उनसे राजपूत बहुत ही इम्प्रेस हुए. एंड दे अडोप्टेड द आर्च एंड मेनी अदर फीचर्स फ्रॉम सुल्तान. Thus, Indian architecture became rich and diverse. The main feature used in the construction of the buildings of the period was the dome. और मेन फीचर कौन सा था कंस्ट्रक्शन का ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड? डोम. एंड इन द बिगिनिंग ओनली हाफ डोम्स वर कंस्ट्रक्टेड. शुरुआत में हाफ डोम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फुल डोम्स बिगेन टू बी मेड. लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फुल डोम्स कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हो गए. एंड आर्च वॉज अनदर फीचर विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड. और ये जो आर्च थे ये भी इंट्रोड्यूस हुए थे वहाँ पे. पिलर्स वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द रूफ एंड द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन underwent a change. The concept of minarets, geometrical motifs and the mosaics were also included in the buildings of period. And जो minarets, you know minarets means tall tower बनाए जाते थे. And geometrical motifs means decorative figures, कुछ decorative figures वहाँ पे बनाई जाती थी. And mosaics means like a tiles, डिज़ाइंस के कुछ टाइल्स वहाँ पे यूज़ की जाती थी, उससे बड़ी डिज़ाइन बनाई जाती थी. वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बिल्डिंग्स ऑफ दैट पीरियड. लेट अस लुक एट सम फेमस बिल्डिंग्स इन द 13th, 14th एंड 15th सेंचुरी. अब हमें 13th, 14th, 15th सेंचुरी की कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में देखना है. द कुवतुल इस्लाम मॉस्क was constructed by कुतुबुद्दीन ऐबक around 1197. और ये जो कुवत उल इस्लाम मॉस्क है, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. और when 1197. एंड द कुतुब मीनार इज़ मेड ऑफ वाइट एंड रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल. और कुतुब मीनार किससे बना हुआ है? वाइट एंड रेड सैंडस्टोन्स एंड मार्बल से. इट इज़ अ यूनिक मोन्यूमेंट दैट हैज़ अ टॉवर्स एंड बालकनीज. और ये एक अलग यूनिक मोन्यूमेंट्स है एंड इसे टॉवर्स और बालकनीज भी है. अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स कंटेन्स आर्चेस एंड अ लार्ज डोम. ही फेल्ड टू कंप्लीट द अलाई मीनार. The massive fort of Tughlaqabad is famous, and the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq was constructed on the high platform with a marble dome. और ये जो टॉम मीन्स समाधि, ये जो घियासुद्दीन तुगलक का जो भी टॉम बनाया हुआ है, वेयर इज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाई प्लेटफॉर्म. एंड किससे बनाया हुआ है? मार्बल डोम वहाँ पे बनाए हुए हैं. देन हाउस खास इन दिल्ली वॉज अ प्लेजर रिसोर्ट विथ अ लेक. यहाँ पे लेक भी है. इट हैज़ आर्चेस एंड बीम्स इन द सेम बिल्डिंग.
In Firoz Shah Kotla we can see the use of the lotus motif. यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? लोटस motif. You know motif? Motif means decorative figures, and it consists of a palace and a mosque. Then Lodi tomb in Delhi is on a high platform and has a garden around it. ये हाई प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है और आजू बाजू में गार्डन है. रीजनल किंगडम्स ऑल्सो डेवलप्ड देयर इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, एंड द फेमस चार मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द रूलर ऑफ गोलकोंडा इन द डेक्कन. और जो रीजनल किंगडम्स थे वहाँ पे भी कुछ इंडिविजुअल स्टाइल्स थी आर्किटेक्चर की. और ये जो फेमस चार मीनार कंस्ट्रक्ट हुआ है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है? गोलकोंडा के रूलर ने इन डेक्कन. इट हैज़ अ 4 lofty gates with 4 minarets. Minarets means tall towers. The most famous Bizapuri building, the Gol Gumbaz, has the largest single dome in the world, and it is a beautifully proportioned structure. Now there is case study about the Qutub Minar. The Qutub Minar at the Mehrauli was built around 1199. It was built by कुतुबुद्दीन ऐबक. किसने बनाया है ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, who founded the slave dynasty, and but due to his early death it was finally completed by his son-in-law and successor इल्ततमिश. और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया था, लेकिन उसके डेथ की वजह से उसके सन इन लॉ ने वो कंप्लीट किया, जो सक्सेसर था इल्ततमिश. And the Qutub Minar has 399 steps, and it is 72.9 meter high. Or what is the speciality of this Qutub Minar? How many steps? It has 399 steps and 72.9 meter high, and it has a projecting balcony carved with a decorative elements on the undersides. It consists of inscriptional surface carving and the variegated fluting. It is the highest stone tower in India. Given here the picture of this Qutub Minar. This is a tower of this Qutub Minar, tall tower. Then there are 2 MCQs. The rulers of the Delhi Sultanate used A. marble, then grey stone, and then C. red sandstone. B option is a answer, grey stone. Then which of the following is a unique feature of architecture during the Sultanate period? Courtyard and colonnades, domes and arch, and C option is both A and B. C option is the answer of this MCQ. Now next there is a हवेलीज. कैसे हवेलीज रहती थी? There are various हवेलीज in Rajasthan. हवेलीज are magnificent mansion and that usually have colorful painting on the walls. कैसे रहती थी हवेलीज? जो भी वॉल्स रहती थी वो कलरफुल पेंटिंग से बनाई हुई रहती थी. Intricate carving on wooden gates which extended into a small courtyard is a unique feature of the हवेलीज. और courtyard means जो घरों के सामने ओपन प्लेस रहती है उसे courtyard कहा जाता है. And this courtyard is a unique feature of the हवेलीज. These small courtyards leads to a larger courtyards. Some हवेलीज have 4 large courtyards. और कुछ हवेलीज ऐसे रहती थी कि उनको बड़े बड़े ऐसे 4 courtyards रहते थे. Mural paintings were done on the outer and inner walls of the हवेलीज and formed an intrinsic feature of these paintings.
एंड व्हाट इज मीन बाय मुरल पेंटिंग्स, जो वॉल पे बनाई जाती है पेंटिंग्स उसे मुरल पेंटिंग कहा जाता है। एंड ये जो हवेलीज रहती थी वहाँ पे मुरल पेंटिंग्स बनाई जाती थी, हवेलीज के अंदर भी और बाहर भी। एंड गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स एंड अ लॉट ऑफ मिरर पीसेस वर यूज्ड एज अ डेकोरेशंस, और गोल्ड सिल्वर लीव्स डेकोरेशन के लिए वहाँ पे यूज़ किए जाते थे, और बहुत सारे मिरर के पीसेस डेकोरेशन के लिए यूज़ किया करते थे। मेनी पीपल इन दिस एरियाज वर द डिवोटीज ऑफ कृष्णाज एंड सो, और बहुत सारे लोग वहाँ के भगवान कृष्ण के भक्त थे। इन मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स द सब्जेक्ट वॉज लाइफ एंड टाइम्स ऑफ कृष्णा, और इसीलिए बहुत सारी पेंटिंग्स किस पे आधारित थी, लाइफ ऑफ कृष्णा। मेनी ब्यूटिफुली डिजाइन कार्व एंड पेंटेड हवेलीज आर देयर इन शेखावती, और बहुत सारी ऐसी ब्यूटिफुली डिजाइन कार्व एंड पेंटेड हवेलीज कहाँ पे है, शेखावती। एंड द हवेलीज ऑफ द जैसलमेर आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जैसलमेर की जो भी हवेलीज है वो फेमस है। दे हैव डेंस इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चरली दे आर अ डिजाइन इन सच अ वे दैट दे कीप आउट हीट एंड डस्ट। नाउ बाउलीज, what is mean by Baulis? Baulis means well. Wealthy rulers in Haryana and Gujarat built a number of बाउलीज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, और बहुत सारे ऐसे हरियाणा और गुजरात के अमीर रिच रूलर्स थे, वेल्दी रूलर्स थे कि वो उन्होंने बहुत सारी बाउलीज मीन्स वेल्स वहाँ पे बिल्ड की हुई है। बाउलीज आर स्टेप वेल्स टू ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर, और बाउलीज किसे बोलेंगे, स्टेप्स वेल्स किसके लिए रहती है स्टेप वेल्स, ऑब्टेन अंडरग्राउंड वाटर। दे वर बिल्ट एट मेनी प्लेसेस इन सदर्न एंड द ईस्टर्न हरियाणा, और कहाँ पे बनाई हुई है ये जो बाउलीज बिल्ड की हुई है, इन सदर्न एंड द ईस्टर्न हरियाणा। Fine structure at the Baulis depict how the people of this land used such intelligent and the durable techniques for obtaining water. And Baulis had a unique and beautiful architectural style with impressive appearances and the sheer massiveness. Now, students, today's topic is completed here. Next topic I will take in next video. Have a good day.